आगे आइए, मुझे मालूम नहीं मेरा टाइम कितने बजे तक है। आखिरत को सामने रखिए और कुरान को उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान करीम के अंदर पारा 3 सूरा अल इमरान आयत नंबर 85 के अंदर बयान फरमाता है। आखिरत के सामने रेखे এবার আসেন এই আয়াতটি আমি আপনার সামনে রাখি। এই আয়াতটির মধ্যে 4টি জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে। কয়টি জিনিস? 4টি জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে। আমি মনে করি আমাদের মতো মাথা মোটা মুসলমান সামান্য যদি এই কোরআনের এই 4টি আয়াতকে, এই আয়াতের মধ্যে যে 4টি জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আমরা যদি বুঝে নিতে পারতাম তাহলে আমাদের পরিবর্তনের জন্য এটাই যথেষ্ট হতো। কিন্তু আশ্চর্য লাগে যে আমরা আজ পর্যন্ত এই 4টি আয়াতকে আমরা আজ পর্যন্ত বা এই আয়াতের 4টি জিনিসকে আমরা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। একদিকে আখিরাতকে সামনে রাখুন আর এই আয়াতটি আপনি শুনুন। শুধু শুনবেন না, প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ, মা বোনেরা আপনাদের কাছেও যে আপনারা একটু ভালো করে শোনার সাথে সাথে বুঝার আপনারা চেষ্টা করবেন। আগে আসুন, अल्लाह तबारक व तआला बोलছেন कुल्लू नफ्सिन दाइक़तुल मौत। पहली चीज़ है लोगों, रब का ये ऐलान आ गया, हर इंसान को मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर इंसान को ये दुनिया छोड़ कर जाना है। अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, फ़कीर हो, चाहे कोई भी हो, एमएलए हो, एमपी हो, नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, लंत्री हो, कोई भी हो, हर इंसान को मरना है, हर इंसान के पास मौत आनी है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बोलून तो কোনো মানুষ মৃত্যু ছাড়া মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে? আচ্ছা, আপনারা তো এমনভাবে কথা বলছেন মনে হচ্ছে যে আপনাদের এলাকাতে কোনো মানুষই মারা যায় না। আপনাদের এলাকাতে মানুষ মরে কি মরে না? একটু কথা বলবেন ভাই, মরে কি মরে না? যদি আপনাদের এলাকায় মানুষ না মরে তাহলে আমাকে বলবেন এখনো বিয়ে শাদী করিনি, বিয়ে শাদী করে আপনাদের গ্রামে থেকে যাব, কাঠিয়ার আর ফিরে যাব না। কে যাবে মরার জন্য কাঠিয়ার ফিরে যেতে? কেউ মরতে চায়? কেউ মরতে চায় না। তাহলে বুঝতে পারলাম যে না, আপনাদের এলাকাতেই মানুষ মারা যায়। তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যখন পবিত্র কোরআনের মধ্যে যখন এলান করে দিয়েছেন কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, তাহলে প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। কোনো মানুষ মৃত্যু ছাড়া বাঁচতে পারে না। কথা ঠিক? 1 নম্বর জিনিস। আর একটা জিনিস আমি আপনাদের সামনে একটু বলে দিই। আমাদের প্রিয় রসুল জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সকলে পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উনি মৃত্যুবরণ করেছেন কি করেননি? মৃত্যুবরণ করেছেন তো। অনেকে আবার বলবে মৌলানা সাহেব আপনি গুস্তাখে রসুল, আল্লাহ রসুলের কাছে মৃত্যু আসেনি। अरे नबी तो पर्दा कर गए। एक जगह मैंने बताया था तो मेरे खिलाफ उन लोगों ने यह फतवा लगाया था कि मौलाना तनवीर अगर कभी जलसे में आए तो उनकी तकरीर ना सुनना। बोला क्यों? बोल रहा मौलवी तनवीर गुस्ताखे रसूल है, नादान बेवकूफ़ कहता है कि नबी के पास मौत आई। अरे मौलवी तनवीर सुन, नबी के पास मौत नहीं आई, तू तो मूर्ख है, तू तो जाहिल है। मैंने उसके बदले में कहा था कि इस मसले पर कभी सामने आकर बात कर ले, तू क्या तेरा पूरा ख़ानदान भी मुझे मूर्ख साबित नहीं कर सकता। नबी के पास भी मौत आई है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। भाई এরকম অনেক প্রমাণ রয়েছে হাদিসের মধ্যে, কোরআনের মধ্যে, যেখানে আমরা স্পষ্টভাবে জানি যে আমাদের প্রিয় রসুল জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনিও মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারেননি, উনার কাছেও মৃত্যু এসেছে। 1 নম্বর জিনিস। তবে এখানে একটি প্রশ্ন আসছে আমাদের মাথার ভিতরে। আপনারা বাংলা বুঝতে পারছেন তো? এবার আমি আপনাদের জন্য কষ্ট করে বাংলা বলছি। তাহলে আমাদের কাছে একটি প্রশ্ন চলে আসছে। প্রশ্নটি হচ্ছে মৌলানা তানভীর আলম সাহেব, ঠিক আছে আমরা মানলাম মানুষের কাছে মৃত্যু আসে, প্রত্যেকটা মানুষ মরবে, এটা আমরা জানি। তবে আমাদের মাথায় প্রশ্নটি হচ্ছে যে আমাদের এই রাতুল গ্রামে 2টি লোক, ফর এক্সাম্পল উদাহরণ সহকারে বলে যাচ্ছি, কেউ নিজের ওপরে কথাটা নিয়ে নেবেন না, জাস্ট বোঝানোর জন্য। প্রশ্নটা কি? প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের এই রাতুল গ্রামের মাটিতে 2 জন লোক, একজন লোক নামাজ পড়ে, একজন লোক নামাজ পড়ে না, একজন লোক দাড়ি রাখে, একজন লোক দাড়ি রাখে না। ওই যে ছেলে মেয়েদের মিডিলে একটা জেন্ডার হয়, তাকে কি বলা হয় জানেন? কি? উনি বলছেন হিজড়া, আমি না, উনি বলছেন। গালি দিলে উনাকে বলুন, আমাকে না। তাহলে এরকম উনি লোকটা। আচ্ছা,
তৃতীয় নম্বর জিনিস, এই লোকটা হারাম খায়, সুদের ব্যবসা করে, সুদের কারোবার করে, মানুষের উপরে অন্যায় করে, অত্যাচার করে, ভাইয়ের হক মেরেছে, বোনের অধিকার মেরেছে, প্রতিবেশীর অধিকার মেরেছে। আর এই লোকটা একদম সৎ, একদম সৎ, 5 টাইমে নামাজ পড়ে, রমজান মাসে রোজা রাখে, উনি টোটো চালিয়ে জীবনযাপন করেন, কিন্তু উনি বোনের অধিকার মারে নাই, ভাইয়ের অধিকার মারে নাই, প্রতিবেশীর অধিকার মারে নাই। এক কথায় উনি একজন ভালো মানুষ। তো প্রশ্নটা হচ্ছে, মৌলানা সাহেব ইনার কাছেও একদিন মৃত্যু আসলো, ইনাকেও আমরা কবরস্থানে যে মাটি দিয়ে দিলাম, ইনার কাছেও মৃত্যু আসলো, ইনাকেও কবরস্থানে যে মাটি দিয়ে দিলাম। এবার মৌলানা তানভীর আলম বলুন, আল্লাহ তো সবার সাথে ইনসাফ করবে। তাহলে যেই লোকটা সারা জীবন খারাপ কাজ করে গেল, সারা জীবন মানুষের উপরে অন্যায় অত্যাচার করে গেল, বোনের অধিকার মেরে গেল, ভাইয়ের অধিকার মেরে গেল, মানুষের প্রতি টর্চার করে গেল, তাহলে মৌলানা সাহেব ওই লোকটা তার খারাপ কাজের শাস্তি কেন পেল না? এবং যেই লোকটি সারা জীবন ভালো কাজ করে গেল, ওই লোকটি এই পৃথিবীর বুকে ভালো কাজের ফল কেন পেল না? মৃত্যু তো সবাইকেই বরণ করতে হলো, তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইনসাফ কোথায় করলো, বিচার কোথায় করলো? এই প্রশ্নটা যদি আমাদের অন্তরের ভিতরে চলে আসে, আমাদের মাইন্ডের ভিতরে চলে আসে, তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই প্রশ্নের উত্তর আজকেই নয়, আজ থেকে 1400 বছর পূর্বে দিয়েছেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার আগের আয়াতে মানে অংশটুতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলে দিচ্ছেন, কি বলছেন শুনুন। ऐ लोगो कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, पहली चीज याद रखो। दूसरी चीज व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और लोगों दुनिया में तुमको तुम्हारे गलत काम की सजा मिले या ना मिले, या अच्छे काम का बदला तुम्हें दुनिया के अंदर मिले या ना मिले, लेकिन एक ऐसा दिन है क़यामत के दिन जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आखिरत के दिन, हिसाब व किताब के दिन, बदले का दिन। और लोगों उस दिन तुम सबको अपना अपना बदला मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह के अंदर बयान फरमाता है, फमन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। ओ दुनिया वालों याद रखो, वो ओइश बंगाल के मुसलमानों याद रखो, और रातुल के मुसलमानों याद रखो, अगर तुम दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भी अच्छा काम करोगे, राई के दाने के बराबर भी अच्छा काम करोगे, तो कल क़यामत के दिन उसका बदला तुमको मिल जाएगा। और अगर दुनिया के अंदर राई के दाने के बराबर भी गलत काम करोगे, तो इसकी सजा भी तुमको उस दिन मिल जाएगी। पता ये चला दुनिया में सजा मिले या ना मिले, दुनिया में बदला मिले या ना मिले, लेकिन एक दिन तो है क़यामत के दिन, एक दिन तो है आखिरत के दिन, बदले का दिन। उस दिन सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, सबको सबका बदला दे दिया जाएगा। इस चीज़ को सामने रखते हुए एक बात मैं आप लोगों के सामने बताकर जा रहा हूँ। आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पावर है, ताकत है, फौज है, कुर्सी है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। आज वो लोगों पर जुल्म करते हैं, क्यों जानते हैं? वो इसलिए करते हैं, भाई मैं MLA हूँ, MP हूँ, नेता हूँ, मंत्री हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, मुझ पर कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? আজকে দুনিয়াতে কত এমন মানুষ আপনি পেয়ে যাবেন যার একটু ক্ষমতা আছে বলে ও মানুষের উপরে অন্যায় করে, কে পৃথিবীতে তুমি আমার কিছু করতে পারবে না। পারবে? একটা উদাহরণ দিয়ে যায়, এটা কথা মনে করবেন না, এখানে অনেক লোক আছেন, বড় বড় উলামা রয়েছেন, এখানে আমার শিক্ষক যোগ্য, প্রত্যেকে উলামা আমার, উনাদের আমি ছাত্ররও যোগ্যতা নয় আমার ভিতরে, তারপরেও আমি একটা কথা বলে যাচ্ছি। আমি জানি আজকে যদি আমি আপনার সামনে এই কথা বলি, আমার কথা রেকর্ডিং হচ্ছে, আজকে তো ও লোক তো ইসি উম্मीद में है, वो लोग तो इसी इंतजार में है कि मौलवी तनवीर की जबान से कुछ ऐसी बातें निकल जाए कि कल मौलवी तनवीर के खिलाफ न्यूज़ चैनल में ये चलाने का मौका मिल जाए कि यार मौलवी तनवीर तो बंगाल के अंदर भड़काऊ भाषण दे रहे थे। आज हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मेरे भाइयों, आज ये दौर, ये वक्त, ये हालात हक बोलने वालों के लिए नहीं है मेरे भाइयों। कुछ दिन पहले आप लोग वो सोशल मीडिया के ऊपर देखे होंगे, वो जो औरत है ना नुपुर शर्मा, हमारे कटिहार के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी,
बड़े बड़े उलमा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाए गए थे। मुझ जैसा तालिब इल्म को भी उसके अंदर मौका दिया गया और मुझे बताया गया कि मौलाना तनवीर साहब आप ज़रा नुपुर शर्मा के बारे में कुछ बताएंगे। तो मैंने नुपुर शर्मा को गाली नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का मैं ऐलान कर रहा हूँ कि आज मेरी उम्र 27 साल है, लेकिन 12 साल से हिंदुस्तान के सैकड़ों मकामात पर मैं पहुँच चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी यूट्यूब की दुनिया में मेरी हज़ारों तकरीरें, हज़ारों वीडियो मेरी मौजूद है। आप जाकर देखिए, आज तक मैंने किसी धर्म के खिलाफ मैंने बुरा शब्द का प्रयोग नहीं किया। आज तक मैंने कभी को आज तक मैंने किसी को गाली नहीं दी। आज तक मैंने किसी को अपमान नहीं किया। आज तक मैंने नफरत वाली बात नहीं रखी लोगों के सामने। मेरे भाइयों इस बात का मैं ऐलान करता हूँ। उसके बावजूद भी जब मैंने नुपुर शर्मा को जवाब दिया, मैंने बस इतना बताया था कि ओ लोगों, ओ नुपुर शर्मा, मेरे नबी की जिंदगी पर उंगली उठाने वाली, कान खोल कर सुन ले। बस तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बता देना ईमानदारी के साथ, अगर तूने अपनी माँ का हलाल दूध पिया है तो चल ये बता कि जब रामचंद्र जी की शादी हुई थी तो रामचंद्र जी की उम्र क्या थी, और जब सीता जी की शादी हुई थी तो सीता जी की उम्र क्या थी। बस मेरा ये सवाल पूछना गुनाह हो गया। एबीपी न्यूज़ ने, एबीपी न्यूज़ हिंदी, उस न्यूज चैनल ने मेरी उस तकरीर को कट करके इस अंदाज में चलाया, इस अंदाज में लोगों को भड़काता रहा कि ये देखो मौलवी तनवीर आलम किस तरह भड़काऊ भाषण दे रहा है, रामचंद्र जी का अपमान कर रहा है, सीता जी का अपमान कर रहा है। और उन लोगों की बात में हमारे देश के भोले भाले नॉन मुस्लिम भाई, हिंदू भाई आ गए मेरे खिलाफ। वो लोग रैलियां निकाली और कहा कि मौलवी को सलाखों के अंदर डाला जाए, तनवीर को फांसी के फंदू पर लटकाया जाए, उसने रामचंद्र जी का अपमान किया है। ओ मेरे भाइयों, मैंने बाद में उन लोगों को जवाब दिया, आपको मालूम है मेरे पास नोटिस आ जाती है, मौलाना तनवीर आलम आप इस तरह भाषण क्यों देते हैं, मेरे पास धमकी आ जाती है। अब जरा देखना उस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा। घर तक लोग पहुंचते हैं, कहते हैं मौलाना तनवीर आलम घर से कदम रखना तो सोच समझ कर कदम रखना, क्योंकि आपको अब इस दुनिया में जीने का कोई हक और अधिकार नहीं है। मेरे भाइयों तरह तरह की धमकियां मिलना शुरू हो गई। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं, मैं तो भाई राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, भड़काऊ भाषण से मेरा कोई लेना देना नहीं, हेट स्पीच से मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे मैं तो मौलवी हूँ, मैं तो इस्लाम का मानने वाला हूँ। जो इस्लाम हमें अमन की तालीम देता है, भाईचारे की तालीम देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहे, इस्लाम इस चीज़ की तालीम देता है। इस्लाम हमें किसी को अपमान करने की तालीम नहीं देता। बहरे कैफ आपको उधर लेकर नहीं जाना चाहता हूँ। जो मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। वो लोग जानते हैं कि आज सरकार हमारी है, अगर हम मुसलमानों की गर्दन पर तलवार रखेंगे तो कोई हमारा बाल नहीं बांका कर सकता। आज हर दिन एवरीडे की बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। मुझे मालूम है आप लोग भी डरते होंगे कि मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए डरना है तो बस रब से डरना है। बताकर जा रहा हूं आप लोगों के सामने, बस सुनते जाइए कि आज कोई ऐसा दिन नहीं कि पूरे हिंदुस्तान भर से मॉब लिंचिंग की खबर ना आती हो। गलत बोल रहा हूं भाई, मैं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जरा मुझे बताइए। मेवात के अंदर 15-20 दिन पहले की बात है, नासिर और जुनैद को पेट्रोल छिड़क कर बलोरों के साथ बांधकर दोनों को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया, दोनों को जिंदा आग में जला दिया गया। इस तरह सिर्फ नासिर और जुनैद नहीं, आज सैकड़ों मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार हो चुके हैं। उमर को उठाइए, पहलू खान को उठाइए, अकबर को उठाइए, रकबर को उठाइए, तबरेज को उठाइए। मेरे भाइयों मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो मैसेज ये है कि आज इन लोगों को इंसाफ मिलने वाला नहीं, और आज इन लोगों को डर नहीं कि कोई हमारा कुछ कर सकता है। लेकिन याद रखो और लोगों सुनो, मुसलमानों मैं रातुल की सरजमीन पर बैठकर आपको भी पैगाम देकर जाना चाहता हूं, और जितने मुसलमान इन लोगों के शिकार हुए हैं उनकी फैमिली को भी ये पैगाम देकर जाना चाहता हूं। और लोगों सुनो, अगर आज दुनिया के ऊपर तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, अगर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, सब्र कर लेना, सब्र कर लेना, सब्र कर लेना, सब्र कर लेना। और याद रखना व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, दुनिया में भले ही हमें बदला मिले या ना मिले, उन लोगों को सजा मिले या ना मिले, लेकिन एक दिन तो ऐसा है, कयामत का दिन, आखिरत का दिन, डे ऑफ जजमेंट, यानी उस दिन सबको सबका बदला मिल जाएगा। दुनिया में आप पर जुल्म हो रहा है, इसका बदला भी कल कयामत के दिन आपको मिलने वाला है, और जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको भी उनका बदला कल कयामत के दिन मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है?